آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس گفتگو کو، اس ویڈیو کو آپ حضرات ضرور سنیں۔ ان دیو کے بندوں کو پتہ نہیں کتنی کھجلی ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی سنی بھائی کو یہ چھیڑتے رہتے ہیں، مناظرے کا چیلنج کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کنیت نکالتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کوئی بحث و مباحثہ کر سکیں، یہ گفتگو کر سکیں۔ رسادی فسادی لکھنؤ میں بھاگا، مولانا طفیل صاحب سے شرائط مناظرہ طے کرنے کا وعدہ کیا، پھر بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں ازری خنجر سے۔ میں آج پھر سے وہی بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج پھر سے ایک نیا چہرہ عاصم دیوبندی، جو کہ مولانا طفیل صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کی رسادی سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب نے کتنے واضح انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، کتنے اچھے انداز میں سمجھانے کی اس کو کوشش کی، پر میں وہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ کہنے کی صلاحیت ہے، کہتے ہیں تو بھونکتے ہی رہتے ہیں کتے کی طرح۔ حضرات، آپ اس گفتگو کو پورا سنیں، لاسٹ تک سنیں، تاکہ آپ کو دل کا سکون حاصل ہو، آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ کہیں سے کہیں تک بھی اہل سنت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے فرد سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک چھوٹے سے اہل سنت کے طالب علم سے بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ۔ حضرات، آئیے اس گفتگو کو پورا سنیں اور لاسٹ تک سنیں۔ جو گفتگو ہوئی ہے ان لوگوں سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں خون جگر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سنیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نور حسن بھائی، جی حضرت۔ نور حسن بھائی، میں نے آپ کی وائس سنی اور دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی لونڈا ہے، یہ جھوٹ سچ بولتا ہے، آتا ہے بیچ میں جھوٹ بولتا ہے، کہاں سے بول رہے ہیں، کبھی بولتا ہے جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں، کبھی بولتا ہے مظفر نگر سے بول رہے ہیں۔ تو یہ بندہ آیا تھا چونکہ رشادی کے موضوع پہ گفتگو جو ہم لوگوں کی ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ وہ جی ہاں، جو زبیر رشادی ہم سے بھاگے ہوا ہے، جو بھاگا ہوا تھا، ہاں زبیر رشادی، جس نے وعدہ کیا تھا آپ سے ملنے کا پر مل نہیں پایا۔ ہاں نہیں، اس نے جو شرائط مناظرہ، چونکہ جو بات مناظرہ طے کریں گے، اور عارف افغانی نے بعد میں مجھ کو قسم بھی کھلائی تھی کہ آپ قسم کھا کر کے بتاؤ کہ کب جو ہے آپ بات کر پاؤ گے شرائط مناظرہ کے حوالے سے۔ تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ 19 تاریخ کو ہم لوگ شرائط مناظرہ طے کریں گے، بات کریں گے، ہے نا؟ جی لکھنؤ میں۔ تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ قسم کھائیے، تو میں نے قسم بھی کھائی تھی، ہے نا؟ جی، میں نے قسم کھا لیا۔ اس کے بعد بھی ایک دیوبندی کا کوئی بچہ میرے پاس نہ فون کیا نہ میسج کیا کہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے فلاں جگہ آ جاؤ، کیونکہ یہ تھا کہ 19 تاریخ کو ہم شرائط مناظرہ طے کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوگا کہ زبیر رشادی اپنے لیٹر پیڈ پہ ہم کو جو ہے مطلب وہ اسٹامپ پیپر پہ 10 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کورٹ سے ہم کو یہ لکھوایا کہ طفیل شمسی صاحب ہمارے پاس آئیں گے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے، ان کے جان و مال کی حفاظت یہ میرے ذمہ ہوگی، ہے نا؟ جی، اور اگر میں بلاؤں گا اپنے پاس تو یہ جو ہے اسٹامپ پیپر میں لکھ کر کے دوں گا 10 روپے کے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اپنے سگنیچر کے ساتھ، وہ بھی اپنے سگنیچر کے ساتھ دیتا، لیکن اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کیا۔ 19 تاریخ گزر گیا، 19 دسمبر، لیکن اس کے بعد پھر دیوبندی کا کوئی ایک بچہ اس حوالے سے گفتگو نہ کر پایا، اور پوری دیوبندیت کو لات مار کے پوری دیوبندی بھاگ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو اس پہ جب میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈلوایا تھا ازہری خنجر پہ، تو پوری دیوبندیت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو ایک لڑکا ہے مظفر نگر کا، جی، وہ کبھی اپنا نام صدام بتاتا ہے، تو یہ پہلے جمشید بھائی کو بھی کال مجھے کیا، بھورا بتایا تھا، ہاں جمشید بھائی کو بھی کال کیا تھا اور ایک عاصم بتا رہا تھا، قاسم۔ ہاں نہیں، قاسم مجھ کو کل اس نے قاسم بتایا، کل۔ ہاں وہی بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میرے کو فون کیا تھا، قریب 10 دن پہلے اس نے فون کیا تھا، جی، تو اس نے کہا تھا کہ تم مولانا طفیل شمسی بول رہے؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ کہا کہ مناظرے کا آپ کو شوق ہے؟ شوق بولا، مناظرے کا شوق ہے کہ اپنی زبان میں وہ مجھے بھی یہی بول رہا تھا حضرت، یہ 100% وہی ہے۔ ہاں تو وہی ہے، وہ کلر بدل کے بات کرتا ہے۔ تو جب میں نے کل اس کی گرفت کی تھی، سمجھ رہے ہیں، جی، تم مظفر نگر سے بول رہے ہو تو یہ بات کاٹ رہا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے کہ نہیں؟ میں کہا تم مظفر نگر سے بول رہے ہو نا، پہلے یہ بتاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال
یہ اس نے کیا کہا کہ آپ کا میں مناظرے کا شوق پورا کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا بتاؤ کون ہے, میں دیکھوں کہ بھائی وہ ہمارے معیار کا ہے کہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. جی تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ طفیل صاحب آپ کا مناظرہ ہوگا علی اصغر سے, سمجھ رہے ہیں. جی تو میں نے کہا علی اصغر میرے معیار کا نہیں ہے, جی اس لیے علی اصغر کو میں جانتا ہوں, یہ بہت بڑا جاہل ہے نا. اب جی علی اصغر سے مناظرہ کرانا ہو تو میں اس کو اپنے اس سے میں جو ہے اپنے شاگرد کو پیش کر دوں گا, وہ اس سے مناظرہ کرے. تو میں نے شاگرد کے طور پہ آپ کا نام پیش کیا تھا کہ نور حسن بھائی ہیں ہمارے شاگرد ہیں, ان سے بات کر لیں. جی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نور حسن سے بات کرا دیجئے, سمجھ رہے ہیں. جی تو اس نے پھر کہا آپ کیوں بات نہیں کر سکتے, میں نے کہا اس لیے میں نہیں بات کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے بہت بڑا جاہل. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے, اس کو عربی گرامر کی تمیز نہیں ہے. یہ عبارت پڑھتا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر عبارت ہے, تو پڑھتا ہے من شک کفرہ, اور کفرہ میں جو یہ کفرہ ہے تو یہ مجرور کیوں ہوا ہے, اس سے پہلے حرف جر ہوگا. حرف جر کو یہ کھا جاتا ہے, تو اس کو جب معلوم نہیں کہ حرف جر کیا ہے, جار کیا ہے, مجرور کیا ہے, جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو یہ کیا بات کرے گا. تو من شک فی کفرہ یہ عبارت صحیح سے یہ نہیں پڑھ پاتا, اتنا بڑا یہ جاہل ہے. تو ہم اس سے, یہ ہمارے معیار کا نہیں تھا, ہم نے اس کو بہرحال یہ کر دیا کہ بھائی اس سے میرا مناظرہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر اس کو مناظرے کا شوق ہے, واقعی یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں بتا پایا کہ یہ مناظرہ کس باب سے ہے نا. یہ جی باب فعالت سے مناظرہ آتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے, اتنا بڑا جاہل ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس کا مناظرہ جو ہے ہمارا شاگرد ہے نور حسن بھائی, اس سے مناظرہ کرا دو, وہ مناظرہ کر لیں گے. جی ہم اللہ, چونکہ مناظرے اصول مناظرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مناظر کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے نا. یعنی کہ اگر جو اس کا مد مقابل ہے وہ بھی, اور جو مناظر ہے وہ بھی, دونوں کا ہم پلہ مناظرے میں ہونا ضروری ہے نا. علم میں مساوی ہونا یہ ضروری ہے. میں نے یہ بات اس کو بتا دی تھی, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہا کہ تب ٹھیک ہے کب نور حسن رضوی, تو میں نے کہا پوچھ لیں گے ہم نور حسن صاحب سے, ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے جب بات کی تو میں نے آپ کی وائس سنی, تو یہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب مناظرے کے تعلق سے ہے نا, یہ کہ کوئی یہ کلیان, ممبئی کلیان کون گاؤں, یہ جگہ کا نام ہے, جگہ ہے کون گاؤں سے کسی نے فون کیا تھا, سلیم پنجاری کا غالباً کوئی ہے, اس کا نام لیا ہے نا. جی میں آپ کا مناظرہ کراؤں گا مفتی مطیع الرحمان صاحب سے, ٹھیک ہے. جی تو مفتی مطیع الرحمان صاحب سے مناظرہ کراؤں گا. سوال اس بات کا ہے کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے مناظرے کا چیلنج اس کو کیا ہے بھائی. مفتی مطیع الرحمان صاحب جانتے ہیں کہ یہ علی اصغر کون ہے؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو ہے اس کو چیلنج کیا مفتی مطیع الرحمان صاحب نے. تو سلیم پنجاری, یہ بتاؤ کہ سلیم پنجاری ہے کون؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں, نہ ہماری جماعت کا کوئی بہت معتبر آدمی ہے, نہ ہماری جماعت کا کوئی نمائندہ ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ بات اس کی ہمارے لیے حجت ہوگی. یہ کون ہے بھائی سلیم پنجاری؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں اس کو. اگر یہ آیا ہے بات کرنے کے لیے, ہم کو تو لگتا ہے ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم ہی کسی بندے کو تیار کرا کے فون کرایا, اس کو سلیم پنجاری بریلوی بنا کر کے بات کرا سکتے ہو. بھائی وہ ہماری جماعت کا معتبر ہے نہیں تو ہم اس پہ اعتماد کیسے کریں؟ یا ہمارے کسی معتبر عالم نے تم سے مفتی مطیع الرحمان کا چیلنج لے کر کے اگر اس طریقے سے تم بھاگنے کی بات کرتے ہو تو تمہارا جو سرخیل مناظر ہے مفتی عمیر قاسمی وہ بھاگ رہا ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ نورحسن بھائی, پہلی بات تو یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ ایسے سمجھو یہ مفتی مطیع الرحمان کا جو ہے یہ چیلنج قبول کر رہا ہے. خود سوچو, کہنا کہ میں مناظرہ کروں گا, تو کس بنا پہ آپ خود سوچو, کس بنا پہ؟ اس بنا پہ کہ مفتی مطیع الرحمان کا چیلنج کوئی بندہ لے کر کے آیا تھا, کون؟ سلیم پنجاری, جو غیر معتبر ہے, اس کو جانتا بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ان کا چیلنج انہوں نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے. ان کا چیلنج انہوں نے, اب میں بتاؤں, اب کہہ رہے کہ یہ مفتی مطیع الرحمان بھاگ رہا ہے, بریلویت بھاگ رہی ہے, یہ وہ فلانا دھماکہ. میں خود بذات خود مولانا مدثر رضا صاحب کا چیلنج لے کر کے عمر آیا تھا, ہے نا. اور میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا عمیر قاسمی آپ تحذیر الناس کی عبارت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, ہمارا مناظر مفتی مدثر رضا صاحب قبلہ آپ کی طے کردہ تاریخ پہ ملیں گے, سمجھ رہے. اس نے کہا کہ وہ مولانا مدثر کی کوئی وائس سناؤ کہ وہ مجھ کو چیلنج کی ہے مناظرے کا, کوئی مناظرے کا چیلنج کی ہے یا کوئی تحریری طور پہ چیلنج دکھاؤ تو میں اس کو ایکسپٹ کروں, قبول کروں. آپ کون ہو؟ آپ ہمارے معتبر تھوڑی نہ ہو, ہے نا. اس کا مدثر رضا ایسے کر کے بھاگا, ٹھیک ہے. میں نے یہاں تک بات کہی کہ عمیر صاحب اگر مولانا مدثر رضا صاحب قبلہ آپ کی طے کردہ تاریخ پہ نہیں ملیں گے تو جو ایک چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی,
جی मैंने ये बात कही थी उमैर कासमी से। उमैर कासमी बहरहाल न तैयार हो सका, मुनाजरा न कर सका, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नूरहसन भाई, ये आप जी ये इस तरीके की ये बात कर रहा है हरामखोर, सुअर से बदतर इंसान, थानवी की तरह हरामी। इसको ये मालूम होना चाहिए कि इसका उमैर कासमी, जबकि मैं एक आलिम हूँ और मैं मौलाना मुदस्सिर रजा का नुमाइंदा बन करके आया हूँ, मौलाना मुदस्सिर रजा, तब इसका उमैर कासमी तैयार नहीं हुआ मुनाजरे के लिए, ये जी जानता था इसकी औकात। और अब ये क्या नाम है, मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब के लिए कोई गैर मोतबर आदमी जिसको कोई जानता भी नहीं है। अरे भाई, जी देवबंदियत में जो आजकल सोशल मीडिया पे जो देवबंदियों के जो मुनाजिर हैं, वो तो कम से कम मेरा नाम तो जानते ही होंगे, तो उनकी हैबत तो है ही है कि जी तुफैल शम्सी कौन है, मेरे नाम की तो हैबत उनके दिल में है ही है। जी हाँ, इनके उमैर कासमी के दिलों में हैबत है, तो इन सबों की तो कोई बात ही नहीं है। जी तो हैबत तो है ही है, तो ये तो जानते ही है। तो जो मैं एक मोतबर आदमी होने की बिना पे मैं आया था नुमाइंदा बन करके मौलाना मुदस्सिर साहब के हवाले से कि मुनाजरा कर लो, तो ये तैयार नहीं हुए। और एक कोई गैर मोतबर आदमी आया, मुफ्ती मोतियुर रहमान का नाम बता दिया, तो ये मुनाजरे के लिए तैयार हो गए, है कि जी नहीं। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, तरीके से उमैर कासमी ने ये बात कही थी कि हमको वॉइस भेजो, हमको तहरीर भेजो, तो उसी तरीके से हमको ये तहरीर मुफ्ती मोतियुर रहमान का दिखाए अली असगर कि ये मेरे पास मुफ्ती मोतियुर रहमान की तहरीर आई है, या मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब किबला की वॉइस आई है, कोई इस जी तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग हो, या तहरीरी शक्ल में कोई लेटर पैड पे उन्होंने अपनी तहरीर पेश की हो कि मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ अली असगर देवबंदी को, है ना। जी वो अली असगर देवबंदी क्या, इनके मौलाना मोतियुर रहमान साहब किबला मद्दसिल्लहुल नूरानी के मोहब्बत ताहिर गयावी नजिस गयावी नहीं है। जी 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 इसको तो जानता भी, इसको जमाते देवबंद में कोई नहीं जानता है भाई, सही बात है। इसकी तो इसने जमाते। इसने देवबंदियत को नंगा कर दिया हजरत, इसकी हकीकत तो ये है। और अगर ये इसको डांटते हैं इसके लोग, कहते हाँ, हैं तुमसे कौन कहता है कि तुम जो है मुनाजरा करो। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मोतबर मुनाजरीन की हैसियत से अगर ये वाकई आना चाहता है, जी ठीक है ना, हमारे मोतबर मुनाजरीन से ये मुनाजरा करना चाहता है, तो हम इसका शौक पूरा कर देंगे। इसके लिए शराइत भाई, इसके लिए एक शर्त हम पेश करते हैं कि भाई तुम अपनी जमात दारुल उलूम देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद के लेटर पैड पे ये लिखवा करके लेकर के आओ कि मैं मोतबर मुनाजिर हूँ, यानी जमाते देवबंद का मोतबर मुनाजिर हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से किसी मोतबर मुनाजिर को पेश कर दूंगा, जी लेकिन उसमें ये लिखा होगा कि इनकी शिकस्त हमारी पूरी देवबंदियत की फतह शिकस्त होगी, है ना। जी हाँ, तो अगर इस तरह का मामला है, तो अगर ये आए हैं मुनाजरा करने के लिए, तो आए, हम इनकी औकात बता देते हैं, इनको पता चल जाएगा, हम भी किसी मोतबर मुनाजिर को पेश कर देंगे, है कि नहीं नूरहसन भाई। जी लेकिन ये मर जाएंगे, धस जाएंगे। और देखो, मैंने जब आपका नाम बताया मुनाजरा के लिए, ये जी क्या नाम है, काम ये क्या नाम है इसकी औकात, सुअर से बदतर इंसान की, जब मैंने आपका नाम बताया, तो ये देखो क्या हुआ, मैंने वॉइस सुनी तो वो भाग रहा है, वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, मुफ्ती मोतियुर रहमान से बात कर पाएगा। उसे मालूम है ना कि मैं नहीं बात कर पाऊंगा, और वही मैंने तो कह दिया अवाम के सामने बात होगी, मैदान में बात होगी, 4x4 के कमरे में नहीं होगी। हाँ, नहीं तो वो बात नहीं कर पाएगा नूरहसन भाई, उसकी हैसियत मुझको मालूम समझ रहे मालूम हैं? है मुझे हजरत। हाँ, ये यूट्यूब पे मेरी जो आपकी बात हुई उसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको डाल देता हूँ। हेलो, जी, कौन? मैं कासिम बोल रहा हूँ। हाँ, कासिम बोल रहा हूँ, मोहम्मद कासिम। कहाँ से? मैं मोहम्मद कासिम झारखंड से। अच्छा, मैं तुफैल शम्सी बोल रहा हूँ। आपकी ऑडियो सुनी थी मैंने हजरत। कौन सी ऑडियो? आप एक जुबैर रसादी है, उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी जी जी, जी, क्या जान? और वो चैलेंज की बात चल रही है मुनाजरे की। हाँ, वो चैलेंज मैंने किया था मुनाजरे का, जी हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मैंने जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। देवबंदी मौलवी, वो क्या नाम है, जुबैर रशादी को मैंने चैलेंज किया था, समझ रहे हैं। जी हाँ और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस दिन चैलेंज उसने एक्सेप्ट ये किया था, तो उसके बाद उसने ये कहा था कि मतलब हम लोगों की जो बाहमी मशवरे पे बात हुई थी, चूंकि फोन रिकॉर्ड भी है, समझ रहे हैं, और यूट्यूब पे समझ भी रहा इस हूँ। बात को चढ़ाई गई, तो वो उसमें ये हुआ था कि हम 2 दिनों में जो है शरायत मुनाजरा तय कर लेंगे, है ना। तो शरायत मुनाजरा तय कर लेंगे, ये 2 दिनों का वक्त था, समझ रहे हैं। तो समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो जैसे हमने अब 2 दिनों का वक्त है, अब कल मैंने फोन किया उनको कि भाई ये बताओ हम लोग किस वक्त शरायत मुनाजरा तय करेंगे, समझ रहे हैं। तो समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि शरायत मुनाजरा जो है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तय कर लीजिए, समझ रहे हैं। जी तो मैंने कहा मैं अभी तो जा रहा हूँ, मैं लखनऊ में चुके रहता हूँ, मैंने कहा लखनऊ जा रहा हूँ खदरा में,
तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे रहने वाला तो गाजीपुर का हूँ, लेकिन रहता परमानेंट लखनऊ में हूँ, समझ रहे हैं। परमानेंट रखना हो? हाँ तो आपका बस हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। आपका रासादी साहब से मुनाजरा हुआ? बात समझिए तो पहले मुकम्मल होने नहीं, दीजिए। हाँ ना मैं पूछ रहा हूँ। हम नाम बहुत लंबी गुफ्तगू हो वजाहत जाएगी। नहीं हो पाएगी ना, मैं वजाहत कर देता हूँ। बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो बहुत जाएगी। हाँ लंबी या ना में? गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। सुनिए कासिम साहब, मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ, इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। बहरहाल जी जी। शरायत मुनाजरा तय वो नहीं किए, फिर उसके बाद दोबारा मैंने उनको फोन किया, समझ रहे हैं। तो उन्होंने समझ कहा रहा कि 9 बजे के बाद कॉल करिए। मैंने 9 बजे के बाद फोन किया तो वो फोन उठाया भी नहीं, और मैंने वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दिए। फिर बीच में आया आरिफ हक्कानी, समझ रहे हैं कि समझ रहा हूँ। हाँ कि तुफैल शमसी साहब आप ऐसा करो कि कसम खाओ कि आप कब मुनाजरा करोगे, वो शरायत मुनाजरा तय करोगे, समझे। समझ रहा हूँ। हाँ तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं 19 तारीख को फारिग होऊंगा, 19 तारीख को मैं शरायत मुनाजरा तय कर सकता हूँ। जब तक मैं फारिग था, जब तक आप लोग तय नहीं किए, लेकिन चलो फिर कह रहे हो तो मैं 19 दिसंबर को मैं फारिग हूँ, 19 दिसंबर को शरायत मुनाजरा तय कर लेंगे। तो कहा कि ऐसे नहीं कसम खाओ आप। तो मैंने कसम खाई, मैं कसम खाया, मैंने कहा कि ठीक है। 19 तारीख गुजर गया साहब, एक देवबंदी का कोई बच्चा एक फोन न कर सका, समझ रहे हैं। तो फिर मैंने समझ रहा हूँ। हाँ फिर मैंने वो सारी चीजें, और फिर 20 तारीख को मुझको सफर करना था, उड़ीसा जाना था, समझ रहे हैं। तो मैंने उसको जो है फिर कैमरे से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे चढ़ाया कि भाई देखो ये है देवबंदियों के भागने का एक रास्ता। मैंने दिखा, साबित किया लोगों को, और लोगों ने काफी इस हद तक महसूस भी हुए कि तकरीबन 12-13 लोगों ने देवबंदियत से तौबा करके ईमान भी लाए, अल्हम्दुलिल्लाह के। कहाँ से? एक आधा का नंबर दो हमें आप। हाँ एक आदमी जिसने देवबंदी तो बैठी है उसका एक आधा का नंबर दो हमें आप। ऐसा होता है क्या कि मतलब मुझे क्या जरूरत है भाई कि कौन सा देवबंदी नहीं तौबा कर, नहीं एक देखो मिनट सुनो मेरी भाई, बात सुनो जो आप। बात की उसकी दलील अपने पास रखो, दलील मजबूत रखो। मतलब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि शरीयत का कौन सा ऐसा उसूल है, जरा सा मुझे बताएंगे कि अगर किसी काफिर को अगर कोई कलमा पढ़ा दे तो उसका नाम एड्रेस पता जरूरी है, जरा सा कोई उसूल जरा सा बिल्कुल पढ़ के बता बिल्कुल बिल्कुल, उससे फिर दोस्ती हो जाती है ना। नहीं तो उसूल अरे शरीयत का बिल्कुल मत करिए, शरीयत का उसूल पढ़िए, किस उसूल में ये बात मौजूद है, कौन सी देखो हदीस में हमने एक कौन सा बरेली है? को देवबंदी बनाया है, सुन रहे साहब। नहीं सुनिए मेरी बात, आपने किस भाई क्या बरेली है, को सुनो मेरी देवबंदी बात, बनाया, मैं पहले मेरी बात पूरी सुनो। मैंने ये आपसे मुतालबा नहीं किया, मैंने पूछा है, मोहसिन भाई आपने है, कहा है मोहसिन कि भाई मुंबई के। हाँ मैं नहीं जानता हूँ ना, मैंने एड्रेस पूछा है। मोहसिन भाई बम्बई के, उसका नंबर भी दूंगा, आप मैं इससे क्या बात कह भी रहा करो। हूँ, मेरा ये उसूल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैंने ये पूछा भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने बताया कितने लोग कलमा पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, नंबर 1। और आपने चलो कहा कि उनका नंबर दो, तो मैंने कहा कि ये बताओ कि जरा सा शरीयत का कौन सा उसूल है, कौन से किस उसूल की किताब में ये बात लिखी हुई होगी, जरा सा वो मुझे बता दीजिए, मैं किताब देख लूँ कि किसी काफिर को कलमा पढ़ाने के बाद उसका एड्रेस, नाम, पता ये सब रखना जरूरी है, जरा सा ये बता दीजिए किस उसूल में ये बात लिखी हुई है। मैंने सिर्फ आपसे हजरत एक बात पूछी, आपका रसादी साहब से मुनाजा हुआ कि मैंने नहीं तो हुआ? भागना बता दिया ना कि वो भाग गया, तो मुनाजरा कैसे होगा। कुल मिला के भाग गया वो। हाँ वो मुनाजरा किया नहीं। चलो 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 चलो, आपकी बात बड़ी कर दी, ऐसा हो नहीं सकता कि भाग गया। पहली बात तो हम तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, भाग गए। अरे भाई अब आप मेरी सुनोगे नहीं मानो यार। चाहे ना मानो यार, ये बताओ। हजरत ये हजरत मेरी बौखलाहट सुनो मुझे ना यार। मालूम है, देवबंदियत में ये जो बौखलाहट हुई है मेरे नाम की, वो मुझे इस चीज का एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बात आपसे पूछना चाहता मेरी हूँ। बात को नहीं सुनी यार, अपनी अपनी क्यों कहते हो? हाँ। तो सुना करो हजरत, हिम्मत रखो, कलेजा रखो अपने पास अच्छा बोलो सुनने का। बोलो 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 बोलो। आपको मुनाजरा का शौक है? हाँ मुनाजरा का शौक रखते हो आप? किससे? देवबंदी से मुनाजरा करने का शौक देवबंदी रखते में हो मैं भाई? देखूंगा ना कौन अब मेरे मियार का है, मैं देखूंगा जरा मेरे कौन मियार का है, बताओ तो, नाम बताओ कौन है मेरे मियार का, मैं देखूं जरा सा किसको आप मेरे मुकाबले में पेश कर रहे हो। भाई जिस तरीके का मैं आलिम उसी जोड़ का मैं भाई, चूंकि उसूले मुनाजरा में ये बात है, मैं आपको बता दूं, पढ़ लीजिएगा कि मुनाजरे में दोनों आलिम का हम पल्ला होना जरूरी है। तो देखूं मैं कौन हमारे मियार का है, बताओ नाम बताओ। मैं आपकी आपसे मुनाजरा करा सकता हूँ अगर आप मुनाजरा करने का तो शौक नाम रखते बताओ ना, नाम नाम। हैं। नाम हाफिज अली असगर। तो हमारे मियार का भी फिर तुम पगला करके आ गए यार, तुम अभी वही आदमी हो तुम जो अभी आए थे, ये बताओ हमारे मियार का है वो? मेरी आपसे बात पहली मर्तबा हो रही है हजरत, आ मेरी आपसे बात पहली मर्तबा हो रही है। नहीं है पहली नहीं, एक बार और हो चुकी है ये बात, यूट्यूब पे जब जाएगी तो मालूम चल जाएगा। तुम झारखंड से नहीं, मुजफ्फरनगर से बोल रहे हो ना? मैं इस टाइम झारखंड से बोल रहा हूँ इस हजरत। टाइम झारखंड से बोल रहे हो ना, लेकिन तुम हो कहाँ के ये बताओ पहले। हाफिज अली असगर से आप तुम गुफ्तगू पहले का ये मुनाजा बताओ कर हो सकते हो? कहाँ के, हाँ तुम या अभी ना? हाँ या ना? मैं हाँ या ये ना? हमारे मियार का नहीं, मैंने तो ये बता दिया, हम ठीक है, हम अपने शागिर्द को पेश कर देंगे, मुनाजरा कर लेगा, बताओ।
चलो कब करोगे बताओ, कब करोगे बताओ, हाँ, मैं कब करोगे मैं बताओ, अपने शागिर्द से पूछ करके बताऊंगा कि उसको कब वक्त है। बताओ कब बताओगे, कब तक बताओगे? अरे भाई तो मैं पूछ करके उससे बता दूंगा कि वो कब उसको फारिग है, कब वो खाली हो रहा नहीं है। कब तक बताओगे? 2 दिन 4 दिन 8 दिन, पता कब बताओगे? आज ठीक है, मैं अपने शागिर्द को पेश कर दूंगा। मैं अपने पहले शागिर्द से अपना बात कर शागिर लूं। सुनो हजरत, अपना शागिर कब पेश करोगे हजरत? हाँ मैं पेश कर दूंगा। मैं अपने शागिर्द से कब बात कर। कब तलक हजरत? सुनो ना यार, सुनो 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 सुनो, चिल्लाओ मत, पहले बात सुनो। हेलो, नहीं कब तलक बताओ, टाइम दो। सुनो, चिल्लाओ मत, पहले थोड़ा सा खामोशी से बात सुनो। पहले मैं अपने शागिर्द से बात तो कर लूं, मैं देखूं कि वो फारिग है, खाली है, कहाँ है, नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो कब फारिग होगा। कब तलक पता दोगे मुझे हजरत? कब तलक पता दोगे? 10 दिन 20 दिन? अरे 10 दिन 20 दिन क्या, चलो मैं बात करके उससे बताता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ उससे, है ना। मुझे कब बताओगे? मैं मुझे बता कब बताओगे अरे हजरत? रुक जाओ, मेरा शागिर्द है ना, वो नूर हसन भाई है, वो मेरा शागिर्द है, ठीक है। मैं उसको सूरजन तुम्हारा भाई है? भाई नहीं, मेरा शागिर्द है, शागिर्द। शागिर्द है, मुनाजा करेगा? हाँ वही मुनाजरा करेगा अली असगर से। हाफिज अली असगर से? मुनाजरा हिफ्जुल ईमान की इबारत पे होगा, ये भी याद रखना। ये भी याद रख रहा है, अहमद रजा खान के कुफ्र पे भी होगा। हाँ तो दिखाना पड़ेगा फतवा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फतवा दिखाओ अपनी जमात का कि तुम्हारे किस अकाबिर ने फतवा का है। जब ये फतवा दिखा दोगे उसके बाद इसे शरायत मुनाजरा में तय किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं क्या, ये नहीं मुनाजा क्या करने के लिए फतवे की जरूरत नहीं होती। तो किसकी जरूरत होती है ये बताओ तुम। जिस अपने अकाबिर से कराएंगे। अच्छा एक अपने अकाबिर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बताओ। हाफिज अली असगर मेरे अकाबिर नहीं है? अरे मेरी बात सुनो, सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ। हाफिज अली असगर किसकी वकालत करेगा? आपकी थानवी की वकालत करेगा या अहले हदीस की वकालत करेगा, ये बताओ। हाफिज अली असगर तुम्हारा अकाबिर है, हमारे अकाबिर है? नहीं ये बताओ पहले। एक मिनट, हाँ है ना, हाँ है ना, मेरा अकाबिर है, तुम्हारा अकाबिर है। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, सुनने के लिए। मेरी बात का जवाब दो हजरत, हजरत मेरी बात का जवाब दो। हाफिज अली असगर किसका अकाबिर है? तुम अपनी मेरे या तुम्हारे? तुम पहले तो झूठ बोले हो कि मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, तुम झारखंड के होने हाफिज से। अली असगर तुम्हारे अकाबिर है कि मेरे अकाबिर है? मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ, सुनोगे? तुम्हारे अंदर सुनने की सलाहियत है या नहीं है ये हाँ बताओ। जवाब दो। हाफिज अली असगर मेरे अकाबिर है कि तुम्हारे अकाबिर है? सुनने की सलाहियत है या फोन काटोगे ये बताओ। नहीं मेरे अंदर सुनने की सलाहियत भी और बात करने की सलाहियत हाँ भी है। अब सुन लो मेरी बात तो। हेलो, बताओ। हाँ खामोशी से सुनना, बोलना नहीं बीच में। बिल्कुल। अब सुनो, मैं तुमको बताऊं। मसला ये है कि तुम्हारा अली असगर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि अली असगर जो तुम्हारा देवबंदी मौलवी है, मैं बरेलवी हाँ। हूँ, ठीक है। मेरा शागिर्द तुम्हारे अली असगर के मुकाबले में मुनाजिर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। ये बताओ कि हमारा जो मुनाजिर होगा, हमारा शागिर्द, ठीक है, वो बरेलवी होगा। तो जो बरेलवी होता है वो अपनी वकालत करता है बरेलवी अकाबिर के, ठीक है। बरेलवी अकाबिर की वकालत करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है, ठीक है। जो बरेलवी उलमा का मौकिफ होगा वो हमारे शागिर्द का मौकिफ होगा, ठीक है। जो आपका देवबंदी मौलवी होगा आपका अली असगर, तो जो देवबंदी मौलवी अली असगर होगा वो भी अपने अकाबिर की यानी देवबंदी उलमा की वकालत करेगा, उनकी नुमाइंदगी करेगा। और जो देवबंदी उलमा का मौकिफ होगा वही मौकिफ अली असगर का भी होगा। तो अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई जब देवबंदी उलमा का मौकिफ ये है कि आला हजरत आशिक रसूल हैं, आला हजरत मुसलमान हैं, तो फिर आप उनको काफिर कैसे कह सकते हो? और इसमें मुनाजरा, ये शरायत मुनाजरा में कैसे तय होगा? पहले ये वो हमको बताओ, समझाओ, उसके बाद ये मौजू बनेगा। और तुम्हारा एक आपकी हजरत बात पूरी होली? सुन लो, हजरत आपकी बात पूरी होली? और सुन लो, पहले मेरी बात मुकम्मल सुनो। और तुम्हारे हिफ्जुल ईमान पे हम जब काफिर तुम्हारे थानवी को कहेंगे तो हम अपने अकाबिर का मौक़िफ़ पेश करेंगे कि देखो हमारे अकाबिर मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इनके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है, ये काफिर है। मैं बताऊं? हाँ आपकी बात पूरी हुई है? हाँ, ये हमारी जमात का फतवा है, हमारी जमात के अकाबिर के नजदीक ये बात पूरी हो गई, मैंने सुन ली, साबित कर देगा, लेकिन तुमको पहले ये दिखाना पड़ेगा। मेरी बात सुनोगे थोड़ी? आपने बात बोल ली बहुत, मैं आपकी सुन चुका हूँ जी। और सुन लो, मुनाजरा फोन पे नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, ये भी याद रखना। नहीं आमने सामने हजरत, आमने सामने हजरत। हाँ ठीक है, आमने सामने मुनाजरा आमने सामने होगा। हजरत, सामने सामने। चलो ठीक है, आमने सामने करा लेना। हाँ ये बता आमने सामने। हाँ अब आगे बोलो, क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनोगे? हाँ बोलो बोलो। जो आदमी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे वो आदमी कैसा है? तो ये तुम्हारे मौलवियों को नजर नहीं आया? नहीं हजरत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, हजरत आप मौलवी हो यार। नहीं तो भाई इस बिना पे तुम जिसको काफिर कहोगे, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कहीं अल्लाह की शान में, हालांकि आला हज़रत ने गुस्ताखी नहीं की है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सुनो मेरी बात, सुनो हजरत पे तुम बात मेरी बात सुनो, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो। नहीं हजरत बिल्कुल नहीं बोलने देने का, बिल्कुल भी। मैंने आपकी बात नजर मोहम्मद कासमी के सुनो, पहले मैं बताऊं, आप उनके चेले हो, उनसे भी मुनाजरा कराने के लिए मुझसे आए थे। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, तूने कहा कि अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करे वो क्या है? मैं बता दूं कि
अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करता है वो काफिर है, ठीक है। काफिर है? हाँ काफिर है। अहमद रजा को कुफ्र में घाट आपने उतार दिया। किसने? अहमद रजा खान को आपने कुफ्र के घाट उतार दिया। चलो वो ऐसा है वो पता चल जाएगा मुनाजरे में, समझे कि अहमद रजा खान को कुफ्र के घाट उतरे हैं या क्या नाम है थानवी तुम्हारा लानती सुअर कुफ्र के घाट उतरा है। कुफ्र के घाट उतार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके हवाले से हम तुमको सफाई नहीं देंगे, इस पे तुम अपनी जमात के जो अकाबिर है, तुम्हारे बड़े थानवी हैं लानती सुअर और गधे खच्चर सुअर से बदतर इंसान, उसका फतवा दिखा दो, मैं उसका फतवा तुमको दिखाऊंगा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी उसकी नजर में आशिक रसूल है, मुसलमान है, आशिक रसूल है, उनको अपना इमाम मानता है। तो इन सारी वजूहात के बिना पे आला हजरत के इंतकाल होने के बाद सुअर से बदतर इंसान उस शख्स ने आला हजरत फाजिल बरेलवी के इंतकाल होने के बाद दुआए मगफिरत की। तो जाहिर सी बात है जब तुम्हारे नजदीक आला हजरत काफिर हैं, तो जो काफिर के लिए दुआए मगफिरत करे उसके ऊपर तो हुक्म खुद पलट जाएगा, खुद काफिर हो जाएगा। बेवकूफे आजम, तुम मुनाजरा करने की बात करते हो, तुम्हारी पूरी देवबंदियत भागी हुई है, तुम जाओ अपना काम करो। हेलो जी, क्या हाल है रोशन भाई? हाँ बढ़िया। आप कौन? बात करो वाली असगर साहब से। अच्छा हजरत, हाँ हाँ बोलो। आप ये कह रहे थे ये कहाँ लिखा हुआ है कि जमात में जाना, कहाँ लिखा हुआ है? अरे वो छोड़ो, अली असगर जो मुनाजरे की बात करने बोल रहा है, तो देखो हजरत तो यार कहाँ लंगड़ लड़ाते हो, कहाँ लंगड़ लड़ाते हो। जो मुनाजरे की बात की है, जो बैसो मुबाइसे की बात की है, चलो आप अली असगर साहब उसके लिए वो। हेलो हजरत, हेलो, अरे अली असगर साहब बोलिए ना जरा जोर से। खाना नहीं खाया क्या? क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे ये? हेलो हेलो असगर साहब, क्या हुआ, खाना नहीं खिलाया क्या इन्हें यार? अरे बात होश में कर यार, नूरसन रुक जा। हेलो हेलो, तुम मेरा नाम भी जान गए? हेलो, हाफिज अली असगर साहब, दोबारा कॉल करो इन्हें काट के, ठीक है? एक मिनट होल्ड पे मेरा फोन मत काटना। हाँ भैया जा भाई साहब, अरे भैया गरीब बना रही है, देखो इसमें से चल। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो जी जी जी, हाँ नूरसन बोल रहे। हाँ मैं नूरसन बोल रहा हूँ। अच्छा, तुमने मुनाजरा का चैलेंज दिया हमने सामने का? मैंने नहीं किया है, ये जो आपके साथी हैं इन्होंने कहा है कि मैं अली असगर को लेकर आऊंगा, अली असगर से बात कराऊंगा। मैंने फोन में या आमने सामने? फोन पर। मगर जब आमने सामने मतलब बात हुई है इनकी फोन पर, मगर जो बैसो मुबाइसा होगा वो आमने सामने होगा, इन्होंने बोला है। हाँ तो आपने चैलेंज दिया है कि उसने चैलेंज दिया? इनकी तरफ से हुआ है नूरसन भाई, झूठ कि मैं अली असगर से बात कराऊंगा। ऑडियो है, ऑडियो है मेरे पास। आपने कहा ना कि हम किसी से बात कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि किससे, वो पता भी तो चले कि मेरे मुकाबिल का है कि नहीं है। एक मिनट रुक जाओ हजरत अली असगर साहब, एक मिनट है। नूर हसन भाई जैसे बात है ऐसे बताओ। उन्होंने चैलेंज किया हमने चैलेंज किया तो शमसी को, तो शमसी तुम्हें लेकर आया है, ये बात बताओ ना, पूरी बात बताओ। अरे तो चैलेंज तो आपकी तरफ से है ना, बात तो आपने शुरू की है ना। दूसरी कि मैं आपकी किसी से बात कराऊंगा, तो उन्होंने कहा कि वो जिससे तुम बात कराओगे वो मेरे मद्दे मुकाबिल का है भी कि नहीं है, तो तुमने नाम बताया। तो जब तुमने नाम बताया अली असगर का, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे मद्दे मुकाबिल का नहीं है, तो मैं अपने शागिर्द से बात कराऊंगा। नूरसन भाई बात सुन मेरी, देखो तसल्ली से बोलो यार। और पूरी देवबंदियत को तो चैलेंज किया। मैंने अली असगर को बात की, तो अली असगर के सामने कहने लगा मैंने कसम उठा रखी, मैं बात नहीं करूंगा। किसने? हाँ कसम खाया।
क्या? उसने बोला कि मैंने कसम उठा रखी है, मैं अली असगर साहब से बात नहीं करूंगा। अरे तो ये एक नंबर का पागल आदमी बेचारा, इतना बोलता है कि मतलब किसी को बोलने नहीं देता है। खैर वो तो आवाम को फैसला करना है, ठीक है। एक काम कर, नूर हसन भाई, हाँ, बोलो। मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, 2 मिनट मेरा कोई देवबंदी भाई नहीं होता, ठीक है। अपना भाई मत बनाओ मुझे, मैं किसी देवबंदी का भाई नहीं हूँ। अली असगर साहब ने पूरी बरेली में आग लगा दी है, समझ गया आप? वो तो खैर आवाम को फैसला करना है, ठीक है। तुम्हें और मुझे नहीं फैसला करना है। आवाम फैसला करिए। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैन बात कीजिए, कहाँ बात करनी है, कब बात करनी है, बोलिए। हाँ बात करो। सुनो, अब सब बंदे खामोश रहो, मैं बात करता हूँ। तो नूर हसन, तुमने मुनाजरा का चैलेंज किया है या मैंने नहीं किया है, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे इस साथी ने किया है, हमने तुम्हारे उस चैलेंज को कबूल किया है। अच्छा, आमने सामने मुनाजरा करोगे? बिल्कुल, जब तुमने कहा है तो आमने सामने होगा। अच्छा, तो देख गुफ्तगू मुकम्मल कर। और आवाम के सामने होगा, 4x4 के कमरे में नहीं होगा, ठीक है ना, किसी मस्जिद में होगा, मैदान में होगा। मेरी बात सुनो, सारी आवाम के। अरे यार मेरी बात सुनो, मतलब शराइत बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, सुनो थोड़ा सा। मैं शराइत को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारी आवाम के सामने बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। वो तो इसमें शराइत में आ गए ना। तो ये शराइत साहब मौलाना तुफैल साहब करेंगे, ठीक है। मैंने मेरी बात तो सुनो, मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल्याण कौन गांव से फोन आया था तुम्हारा, कल्याण भी मतलब कि मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मुकम्मल सुनो गुफ्तगू, ताकि बात समझ में आ जाए। मुंबई कल्याण कौन गांव से फोन आया था, एक सलीम पिंजारी जो बरेलवी मतलब का है, उसको बरेलवियों ने उसको कहा कि तुम अली असगर से फोन करो, गुफ्तगू करो और उसको मुनाजरा का चैलेंज करो मुफ्ती मोतीउर रहमान से। शायद तुमने वीडियो सुनी होगी। तो मुफ्ती मोतीउर रहमान से मुनाजरा का मैंने चैलेंज कबूल कर लिया था कुछ शराइत के साथ। तो उसने तस्लीम कर लिया कि ठीक है, मुफ्ती मोतीउर रहमान से हमारा मुनाजरा होगा, और मैंने कहा जो मुनाजिर होगा तुम्हारा वही मुझे फोन करे ताकि शराइत तय हो। और उसने कहा था ठीक है। तो मुफ्ती मोतीउर रहमान का नंबर दीजिए आप मुझे। मेरी बात तो उनसे, एक मिनट, वो मुफ्ती हकीकत में मुफ्ती हैं? जो मुफ्ती मोतीउर रहमान वही है जो मौलाना ताहिर हुसैन गाजी के साथ मुनाजरा किया था इटारसी के अंदर। उनकी बात कर रहे हो तुम? ठीक है, मेरी बात सुनो। उनके बात कर रहे हो, उनके मुकाबिल के हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा नजर मोहम्मद फोन काट के भागा, जरा पूछो उससे। मेरी बात तो तुम्हारे दारुल देवबंद के मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के सामने फोन कट करके भागे। तुम सुन नहीं रहे हो। तुम जो ये बहस कर रहे हो, बकवास कर रहे हो कि वही मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब बात तो सुनो, जिन्होंने इटार से मुनाजरा किया है। सुनो, अरे यार मेरी बात तो सुनो जी, बोलो। तो उसके बाद गुफ्तगू ये हुई थी कि वो फोन कराएगा। वो तुमसे कहेंगे कि मैं मुनाजरा करूंगा, वो तुमसे कहेंगे। मेरी बात सुनो, क्या कर रहा हूँ? क्या बात सुनो, तुम्हारी बात सुनने के काबिल नहीं है यार। खैर काम की बात करो, अपनी बात करो, तुम मुझसे कहाँ बात करना चाहते हो? काम की बात कर रहा हूँ। तो बात ये हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मुफ्ती मोतीउर रहमान मर गया, नहीं आया, माज़अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। देख रहे हैं मुसलमानों, ये है इन देवबंदियों की ज़बान। मेरी बात सुनो, मैंने आवाम का जो नाम ले दिया ना, इसके ऊपर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। और मैं बगैर आवाम के बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ आवाम के सामने बात करना चाहता हूँ, आवाम को समझा के। नहीं सुनो ना, खुलासा से मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। अब उसके बाद मैंने तुम्हारे मौलवी से कहा, मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा से कहा और आबिद मौलवी से कहा, कल्याण गांव वाले से, कि जब तुम्हारा हमारे साथ तय है कि मोतीउर रहमान से मुनाजरा आमने सामने होगा, फिर तुम मुदस्सिर रज़ा को क्यों लेकर आए? तो जब दूसरा कोई मुनाजिर आएगा, चाहे मुदस्सिर रज़ा हो या नूर हसन हो या तुफैल शमसी हो, कोई भी हो, जिससे तय है वो अगर ऐलान कर दे, ये सब तेरी राह फरारी है, ठीक है, ये सब तेरी राह फरारी है। अरे नहीं, एक शर्त दुनिया है देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जला जो किसी भी अकायद पर मुझसे तेरा बड़े से बड़ा मौलवी बात कर ले। अच्छा हाँ, मेरी बात इन्होंने तुम्हारा नाम लिया, मैंने बात करने के लिए पैदा किया, तेरी अम्मी ने डीगे मारी थी, तेरा कोई मकसद? मैंने हाँ किया, और मैंने कहा कि हाँ मैं अली असगर से बात करूंगा, और हिफ्जुल ईमान की इबारत पे इन्होंने कहा है कि ठीक है हिफ्जुल ईमान की इबारत पर बहस होगी। हिफ्जुल ईमान पे अहमद रजा के कुफ्र पे, तो वो तुमको साबित करना होगा तुम्हारे घर से। सद्दाम भाई जरा खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ उससे अभी। ये पूरा खुलासा। अरे यार ये सद्दाम नहीं है, भूरा है ये। ओ जनाब ये सद्दाम नहीं है, भूरा है ये। मुफ्ती मोतीउर रहमान से मुतालिक तुम्हारे लोग ऐलान कर देंगे। अरे सुनो तो, मर गया है, ये सद्दाम नहीं है, ये भूरा है। सामने आए
तुम्हारे तरफ से जब ऐलान हो जाएगा कि मुफ्ती मुतीउर रहमान मर गया है, माज़अल्लाह, देख रहे हैं मुसलमानों, ये राह फरारी है, ये सिर्फ इसकी राह फरारी है और कुछ भी नहीं। और मैंने इसलिए इसके चैलेंज को कबूल किया कि कौन गांव का मुझे मालूम है ना खंजर उठेगा ना तलवार, इन देवबंदियों से ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, उठाने के लायक बस अब पागल हो गए। नहीं है, देख रहे हैं मुसलमानों, कोई हालत हालत है तुम्हारा मुफ्ती मुतीउर रहमान मैंने रखा नहीं है, ये इनकी बहस मुबाहिसा करने की हालत है, कोई अंदाज लग रहा है, पागलपन के दौरे पड़ने लगे। नहीं है कि हमसे बात करें, तुम्हें मुझे औकात पता है। सुन तेरे ताहिर रहबी की औकात नहीं है मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला से बात करने की, तेरे नजर मोहम्मद की औकात नहीं है उनसे बात करने की। तू आया है चिल्ले के पिल्ले, तू बात करेगा, तू है उनके मुकाबिल का? अरे तू मौलाना तुफैल साहब के मुकाबिल का नहीं है, देखें तू उनसे बात करेगा? जब से पागल कहीं का। मुफ्ती रहमान से मुतालिक चैलेंज कबूल किया मैंने, वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद से बेरौनी में जलजला आया हुआ है। कभी बकवास जरा कम कर। जावेद रजा मौलवी फोन करता है, फैसला आवाम को करना है, तेरे जैसे चिल्ले के पिल्ले को थोड़ी करना है। कभी नूर हसन रजा खानी चैलेंज करता है आमने सामने का, लेकिन जिससे अबे तेरे चिल्ले के पिल्ले के चैलेंज को मैंने कबूल किया, ठीक है? तेरे इस बंदे ने कहा कि मैं अली असगर से बात कराऊंगा, बात क्यों नहीं कर रही है जब उसके मुताबिक ऐलान हुआ है? मुसलमानों देख रहे हो कैसे पागलपन के दौरे पड़े हुए हैं, बोलता ही रहेगा, ये बोलता ही रहेगा, बस उसके बाद ही बात नहीं करेगा कि हाँ मैं करूंगा नहीं करूंगा, कहाँ करूंगा कहाँ नहीं करूंगा, कब करूंगा कब नहीं करूंगा, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बताएगा। क्योंकि दुनियाई देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने ऐसा बच्चे ही पैदा नहीं किया जो नूर हसन के सामने किसी भी अकायद पर वो बात कर सके, बोल सके। तुझे तेरी अम्मी ने पैदा किया डींगे मारने के लिए, इसके अलावा नहीं, हकीकत उजागर करने के लिए मुझे पैदा किया है, हकीकत को उजागर करने के लिए, देवबंदियों का साफ सुथरा ऑपरेशन करने के लिए, अवाम अहले सुन्नत को साफ तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए। दुनियाई देवबंदियत में जलजला पैदा हो गया है नूर हसन का जमाने में अली असगर के जरिए से। सुनना, जब से मैं निकला हूँ दुनियाई देवबंदियत में जलजला आ गया है, और जब से मैंने ऑपरेशन करना शुरू किया है दुनियाई देवबंदियत का, जब से बड़े बड़े मुफ्तियों को साफ सूंघ गया है। यह है खजालत मत मिटा, मैं हंसने के मूड में नहीं हूँ। पैदा हुआ डींगे मारने के लिए पूरी तू मुझसे बात करने के लिए तैयार हो, और बोला कब करेगा, बोल कब करेगा बात? मौलाना तुफैल साहब ने सुनना, मुनाजिरा का चैलेंज कबूल नहीं किया, तेरी क्या होगा तेरे? मौलाना तुफैल साहब, अरे बे सुनना, मुझे मालूम है ना खंजर उठेगा ना तलवार, तुम देवबंदियों से ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रहमान के हाथ से खंजर उठाने की माज़अल्लाह, अबे चिल्ले के पिल्ले है, तो मौलाना तुफैल साहब के सामने बात करने के काबिल नहीं है, तो उनसे बात करेगा जाके। चिल्लर हो चुका है, उसकी मौत देख रहे हैं मुसलमानों, अब ये खाली ढेंगे मारेगा और इस तरह की बकवास करना, बात करना तुम लोग मेरी आदत नहीं है। क्या मुफ्ती मुतीउर रहमान को तुम छुपाना चाहते हो? माज़अल्लाह लानतुल्लाह, अबे साले पागल कहीं के, पहले हमसे तो बच ले तू। मुफ्ती मुतीउर रहमान अबे पहले हमसे तो निबट, चैलेंज हुआ है। ओ कमीन, पहले हमसे तो निबट। मुफ्ती मुतीउर रहमान मौत से घाट अबे पहले नूर हसन से तो निबट के जा, तो ऐलान कर। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला का नाम लेने काबिल तेरी जबान नहीं है, इस नापाक जबान से उनका पाक नाम मत ले कमीन। तू पहले मुझसे बात कर, तेरा मुफ्ती मुतीउर रहमान गया है, तू पहले मुझसे बात करना। करूंगा तेरे मुफ्ती। देख रहे हैं मुसलमानों, मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे बहस और मुबाहिसा कर, मुझसे बात कर। मुफ्ती मुदस्सिर आया है, अबे मुझसे बात करना। परसों कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, नरसों कोई और आएगा, सारे सबके तेरे इस देवबंदी के चैलेंज को कबूल किया और मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? बोल कब बात करेगा? और अगर तुझे हिफ्जुल ईमान की इबादत है, सुन, तुझे हिफ्जुल ईमान की इबादत अगर जरूरी लग रही है टॉपिक तू चुन, मेरे सामने खुशी नहीं है। चल इल्म गैब हाजिर नाजिर नूर बशर इख्तियार रसूल, चल बोल। अगर तो हिफ्जुल ईमान पर बात नहीं करने के, अरे हिफ्जुल ईमान पर बात करने के काबिल नहीं है तो चार कायद में से चुन ले, तू किस टॉपिक पे बात करना चाहता है, बोल। ऐलान करेगा कि देख रहे हैं मुसलमानों, रहमान मर गया है, देख रहे हैं मुसलमानों, ये सिर्फ राह फरारी है इसकी, ये सिर्फ राह फरारी, सिर्फ राह फरारी, धोखा देना आवाम को। किसी और का मुनाजिरा मुसलमानों हिम्मत नहीं है, ये देवबंदी बड़े बड़े देवबंदी पागल हो गए, नूर हसन का नाम सुन के पसीना निकल जाता है इनका। रहमान तेरा जो है तुम्हारा मुनाजिर कहलाता है, उसने उसकी मौत, उसको मैं मौत से घाट उतार दिया है। मुसलमानों देख रहे हैं, सिर्फ खाली बकवास करेगा, सिर्फ सरदर्दी करेगा। मेरी औकात तो वो है कि तेरी दुनिया देवबंदियत में जलजला पैदा कर दिया है। तेरे बड़े बड़े मुफ्ती कॉल कर देते हैं नूर हसन का, जवाब नहीं दे पाते, भाग जाते हैं। देवबंद में क्या करने बिठाला उन्हें? अबे फतवा नवेशी के लिए वहाँ बिठाला है, दारुल इस्लाम में बिठाला, साले फतवा देने के काबिल नहीं है, मसला मसाइल बताने के काबिल नहीं है, साले कहते हैं किताब देख के बताएंगे। अबे साले कमीने फतवा,
अबे सुनना, मसला मसाइल किताब देख के बताया जाता है। मुफ्ती पढ़ा तो किस लिए पढ़ा है? इसका किया किस लिए किया है? अबे जाहिल कहीं के उल्लू के बच्चे, तेरे देवबंद बंदरों ने जो ये इफ्तार करके जो दारुल देवबंद की रोटी खा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं वहाँ हराम की, तू बड़ा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान? हराम के पिल्ले तू बड़ा है कि तेरे चिल्लर के पिल्ले जो देवबंद के मुफ्ती है वो बड़े हैं? साले कौन काट के बात जाते हैं मेरा? तू बड़ा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान? अबे हराम के पिल्ले दारुल देवबंद का नजर मोहम्मद, मैं पूछ रहा हूँ सहारनपुर देवबंद का नजर मोहम्मद, वो कौन काट के बात किया मेरा? मुफ्ती मोतीउर रहमान का। और मैंने ऑडियो डाल भी दी है, समझा? ऑडियो सुन ले जाके। अबे कमीन, बड़ा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान का? नजर मोहम्मद की गुफ्तगू सुन ले जाके। नजर मोहम्मद बाबा कौन काट के पड़ा? बड़ा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान का? अबे चिल्लर के पिल्ला, तेरे साले तेरे जैसे चूहे से बात करेंगे। अरे बंदर, तेरे जैसे बंदर से बात करेंगे वो कमीने। उनके मुकाबिल का तो लेके आ। अबे उनके मुकाबिल का तो लेके आ, उनके मुकाबिल का तो लेके आ। अबे हराम के पिल्ले, उनके मुकाबिल का तो लेके आ। अरे गाली मत तू मेरे सामने बात करने के काबिल नहीं है। साले राहे फरारी कर रहा था। देख रहे मुसलमानों, खाली सरदारी करेगा, कौन काटे देता हूँ, क्या फायदा? हराम का पिल्ला मुझसे बात करने के काबिल नहीं है। इतना जवाब देते। देखिए, जब किसी को मारना नहीं होता ना, जब किसी को मारना नहीं होता तो वो बल्ली उठाता है। अभी हराम का पिल्ला मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब का नाम ले रहा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान, ये मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अरे पहले मुझे तो शिकस्त दे, पहले मुझे तो शिकस्त दे। जब मुफ्ती मोतीउर रहमान से मेरे सामने बात करने के काबिल नहीं है। दुनिया देवनीत में अभी तक किसी देवंती औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुझसे बात कर ले किसी भी आकाश पर। अब चल जा, भाग जा, कौन जा मौलवी का आना, इसकी वजह क्या है? अब तू ये बता के जा कि तेरे मतलब में तेरा मकाम ज्यादा बड़ा है कि तेरा मुफ्ती मोतीउर रहमान का? ये बड़ा तेरे जैसे हराम के पिल्ले से वो बात क्यों करेंगे? तो मैं कहा ना, मुझे तैयार किया ना उन्होंने। जब तेरे अरे मुझे तैयार किया ना उन्होंने तेरे लिए। सुन बे, बड़ा है। अच्छा एक मिनट, मुनाजरा का चैलेंज हुआ है। अच्छा दारुल देवबंद में इस वक्त तू सब में बड़ा आलिम है? सुन बे हराम के पिल्ले, क्यों आया बोल? अच्छा जी, दारुल देवबंद में जलाकर क्यों सुन बे हरामी, अब मेरी बात को सुन ले प्यार से तसल्ली से। शमशान घाट में देख रहे हैं मुसलमानों, ये मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मैं जानता हूँ ना। मैं खंजर उठेगा ना तलवार इन देव के बंदरों से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मुफ्ती मोतीउर रहमान इन शैतानों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब तो ये बता दे, तू पूरी दुनियाई देवबंदियत में, सुन बे, तो फिर तू उसको लात मार, अबे सुनना, इंडिया में तेरे से बड़ा कोई आलिम नहीं है देवबंद में। पहले मेरी बात का जवाब दे। इंडिया में तेरे से बड़ा कोई आलिम नहीं है यहाँ भारत में। तू तेरे इस भारत में, तेरे इस भारत में देवबंदियों में तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। मेरी बातों का जवाब दे। अबे कमीन के बच्चे, पहले मेरी बात का जवाब दे। आमने सामने तुझे जो चैलेंज दिया, मैंने कबूल किया है। अब मुफ्ती मोतीउर रहमान फोन करेगा उसे शराइत माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देख रहे मुसलमानों, जब किसी को मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता है। जब किसी को मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता है। कमीने, अरे मुझे तैयार किया है उन्होंने, मुझे तैयार किया है उन्होंने। मैं बात करूंगा तुझसे, चैलेंज करता है मर्द ड्राइवर होकर। अरे मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा, मुझे तैयार किया है उन्होंने, मैं बात करूंगा। तेरी अम्मा ने और तुझे दूध पिलाया और तुझे तेरी माँ बापों ने पढ़ाया, इसलिए कि बड़े को तुझे सिखाया, तो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जा। मुझसे बात करने के लिए मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे उन्होंने तैयार किया है ना। तुझे भेजा है फिर वही बात, मुफ्ती मोतीउर रहमान तैयार हो, मैं उन्हीं की किताबों से, उन्हीं के मुनाजरे से काबिल हुआ हूँ ना। मुझे मौलाना तुफैल साहब ने कहा है, सुन बे हरामी जिला के पैदावार, मौलाना तुफैल साहब ने मेरे लिए जो है, सुन बे, अबे सारे कमीने बदबख्त, देख रहे मुसलमानों, मंजूर करता हूँ। सामने से चैलेंज हुआ और कह रहा है मुझे तेरा चैलेंज कबूल है। अबे कमीन के बच्चे, चैलेंज मैंने कबूल किया है तेरा भट, हराम का बिल्ला है वहां से। देख रहे हो मुसलमानों, अरे यार इसको झगड़ा कहते हैं बात। जनाब हजरात, सुनी आपने ये गुफ्तगू। जब मैंने इससे सीरियस बात करने की कोशिश की कि आसिम देवबंदी ने जो कहा है, मैंने उस बात को कबूल किया, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, तो इस पर किस तरह जो है पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, किस तरह ये बौखलाहट का शिकार हो गया है कि अब भी फैसला करने में आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है हजरात। अरे भाई, कम से कम यही देख लो कि कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला है और कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला है। जो जिसका होता है उसकी तारीफ करता है। मुसलमानों, आपने सुना होगा दिन ब दिन वहाबी देवबंदियों की तरफ से कोई ना कोई गुस्ताखी होती ही रहती है। इनकी किताबें गुस्ताखियों से भरी हुई हैं। मगर एक बात कहना चाहूंगा
صرف مسلمان اللہ کے نبی سے دشمنی رکھے گا اور وہابی دیوبندی جو ہے جو دشمنان رسول ہے وہی دیوبندیوں سے اللہ کے نبی سے معاذ اللہ بغض رکھے گا, دشمنی رکھے گا.